نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. اچھا، وہ اس سے پہلے کہ خاکسار جو ہیں وہ ویڈیو سنوائے جو کہ سنوانا جاتا ہے محترم شمس الدین صاحب کی، میں شمس الدین صاحب کو ایڈ کر کے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا وہ ویڈیو کے دوران اتنی ان میں حوصلہ ہوگا کہ وہ خاموشی کے ساتھ ویڈیو سن لیں اور میرے کمنٹس اس کے اوپر سن لیں، ڈاکٹر صاحب یا ایک میں ان کو بعد میں ایڈ کروں؟ جی جی گزارش یہ ہے کہ جب شمس صاحب آئیں گے، ظاہری بات ہے کہ میں مرتاد ان کو کہتا ہوں، وہ میں کہتا رہوں گا جب تک یہ بدتمیزی نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب تک وہ ادھر موجود ہوں گے تب چلے میں چلو یہ نہیں جی کہتا. جی جی لیکن ان کے سامنے ایک نہیں بات کہنا. یہ ہے، بالکل ایک بات یہ ہے، دوسری یہ کہ اگر ہم نے ان سے کوئی پوچھنا ہو یا انہوں نے ہم میں سے کسی سے کچھ پوچھنا ہو تو ہم آپ کے تھرو پوچھ لیں گے. یعنی میں ٹھیک ہے آپ کو سوال کروں گا ٹھیک ہے کہ جی یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو وہ پھر آپ کے تھرو، یعنی کہ تاکہ وہ تھوڑا ترتیب سے بات جو ہے وہ چل جائے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا چلیں جی دوستوں، شمس الدین صاحب کو پوچھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم شمس الدین صاحب. شمس الدین صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اپنا مائک کھول لیں میرے بھائی. جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز، فرمائیے. ٹھیک ہے جی شمس الدین صاحب، میں ابھی دوستوں کو ایک ویڈیو سنوانے لگا تھا آپ کی، اور اس کے اوپر کچھ کامنٹس میں نے کرنے تھے. اگر تو آپ نے اس ویڈیو کو سننے کے دوران یہاں پہ موجود رہنا ہے اوپر اسکرین میں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ مجھے امید ہے خاموشی سے اس کو سنیں گے، میرے کامنٹس بھی خاموشی سے سنیں گے. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلیں دوستو، شمس الدین صاحب کی ویڈیو ہے جی، اب شمس الدین صاحب کی موجودگی میں ہم آپ کو سنواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شمس الدین صاحب جو ہیں انہوں نے عوام الناس کو پچھلے جو 2-3 سال تھے اس میں گمراہ کیا، جھوٹی باتیں جو تھیں وہ منسوب کی جماعت احمدیہ کی طرف وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کی طرف چلیں، یہ میں ایک آپ کو ابھی بتا رہا تھا، آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ شمس الدین صاحب محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیارے بھائیوں اب یہ مان گئے ہیں کہ وہ جو تحقیق تھی وہ ان کی نئی تحقیق نہیں تھی، انہوں نے اپنے کسی مولوی صاحب کی تحقیق کو چوری کیا تھا، اس کو پڑھا تھا اور وہاں سے انہوں نے پھر آگے بیان کر دی. یہ ان کے ایک ان کے پروگرام میں بھی آتے ہوتے ہیں، امریکہ سے ان کے ہیں کوئی بشیر شاہ صاحب، انہوں نے ایک اپنا لکھا تھا بلاگ، یحییٰ خان شمس الدین کزن ایکسپوزڈ، اور وہ انہوں نے تو خیر جس معاملے میں بھی لکھا تھا، آج تو الحمدللہ انہی کے بلاگ کی وجہ سے شمس الدین صاحب مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں. کہتے ہیں جی ایور سنس شمس الدین came out and exposed Ahmadiyya, the Ahmadiyya ڈاکٹر movement صاحب اس کو has زوم کریں. جی ٹھیک ہے، میں ایک منٹ اس کو زوم کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی اب بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، کہتے ہیں جی ایور سنس شمس الدین came out and exposed Ahmadiyya, the Ahmadiyya movement has sent his cousin Yahya Khan، ان کو شاید میرا پورا نام نہیں پتا ہوگا، to begin a verbal battle. شمس الدین، اب یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، شمس الدین presented new research. یہ جو شمس الدین صاحب نے اپنی عوام کو دھوکہ دیا، اسی میں یہ بشیر شاہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے. نیو ریسرچ آن یوز آصف اینڈ اسٹن دا ورلڈ آف احمدیہ. ہے جی، اب یہ دیکھ لیں اللہ کے فضل سے کہ کون اسٹنڈ ہوا ہوا ہے. بہرحال یہ پڑھانے کے بعد آپ چلتے ہیں جناب شمس الدین صاحب کی ویڈیو کے کچھ کلپ آپ کو سناتے ہیں، اور شروع میں ہی وہ کلپ ہے جس میں شمس الدین صاحب نے اپنے جو سٹریم ہے اس میں پچھلے ہفتے والے دن یہ مان لیا ہے کہ ان کی جو ریسرچ ہے وہ جو پیش کر رہے تھے یہ نئی ریسرچ کر کے، وہ ان کی ریسرچ نہیں ہے، یہ ان کے کسی مولوی صاحب کی ریسرچ ہے. یہ پہلے دوست مجھے بتا دیں آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی جی آ رہی ہے. چلیں دوستوں اب شمس الدین صاحب کی ویڈیو سنیں
اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو حقائق بھی دکھلاتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحقیق شمس الدین کی نہیں ہے، اس نے جعل سازی کی ہے۔ یہ کیا تھا؟ اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اس نے تحقیق کسی کی چوری کر کے تو یہ پیش کی ہے دنیا کے سامنے۔ دیکھیے ہم آج آپ کو، انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہمارے علماء کی کتابیں ہیں، ہمارے پاس ہمارے بڑے بڑے جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا جی، اب ان کتابوں سے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی جب حوالے دیتے ہیں، ہم کوئی اپنی ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے چوری کی ہے۔ وہ ہمارے علماء کرام ہیں، وہ ہمارے مفسرین ہیں، ہمارے مجددین ہیں، ہمیں ان پہ الحمدللہ فخر ہے۔ اب ان کتابوں سے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی جب حوالے دیتے ہیں، ہم کوئی اپنی ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے چوری کی ہے۔ اچھا جی، وہ اب ان کتابوں سے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی جب حوالے دیتے ہیں، ہم کوئی اپنی ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے چوری کی ہے۔ اچھا جی جی میرے بھائیو، آپ نے سنا، وہی شمس الدین صاحب جو کہ اپنے دوستوں کو، ارد گرد لوگوں کو یہ کہانی 2 سال تک سناتے رہے کہ گویا انہوں نے کوئی نئی تحقیق پیش کر دی ہے دنیا کے سامنے، اب وہ الحمدللہ مان گئے ہیں کہ کوئی نئی ریسرچ نہیں ہے، وہی پرانی کڑی میں ابال آیا ہے۔ ہاں جی، سنیں ذرا۔ اب ان کتابوں سے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی جب حوالے دیتے ہیں، ہم کوئی اپنی ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے چوری کی ہے۔ جی میرے بھائیو، تو یہ تو تھی شمس الدین صاحب کی جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے۔ اب ہم آپ کو شمس الدین صاحب کی ویڈیوز، وہ ویڈیوز جو کہ انہوں نے ان 2 کتابوں سے متعلق بنائیں، یہ جو 2 کتابیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں، راز حقیقت اور عین الحیات، اب اس سے متعلق جو شمس الدین صاحب نے عوام کو جو ہیں وہ دھوکے دیے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور بڑے دیکھیں اللہ کا کیا احسان ہے کہ جب ہم جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں تو وہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ بہرحال سنیں ذرا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں جس کا نام قرآن پاک ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے یہ بن باپ پیدا ہوئے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے اب ذرا غور سے سنیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ قادیانیوں کا بھی یقیناً یہی عقیدہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے ہیں۔ جی میرے بھائیو، یہ میں نے کیوں لیا ان کا کلپ، وہی شمس الدین صاحب جو کہ یہاں وہ ہلکے سے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے ہیں۔ چیلنج میں دیکھو، چیلنج میں پیارے بھائیوں انہوں نے کیا جھوٹ بول دیا تھا، صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ کیا تھا جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی والد تھے جو بادشاہ تھے۔ اور بھائی جان، جب آپ خود مان رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ چیلنج میں کیوں لے کے آئے ہیں؟ کس قدر آپ نے عوام کو دھوکہ دیا۔ بہرحال جی آگے چلیں۔ اس کتاب، اس قرآن مجید کے اندر اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو بہت دفعہ ان کی والدہ کے نام کے ساتھ آیا ہے، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم کر دی۔ انہوں نے اس قبر کو الہامی قبر کہا کہ مجھے اللہ نے الہام کیا ہے کہ یہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جی میرے بھائیو، یہ جس طرح کے سلیم میر بھائی بھی کہہ رہے تھے، بار بار یہ لوگ یہ شوشہ چھوڑتے رہے ہیں، لیکن آج تک ان میں سے کسی ایک بھی بندے نے یہ وہ الہام ہمارے سامنے پیش نہیں کیا۔ یہ انشاءاللہ آج ان سے یہ سوال ہم کریں گے کہ جناب وہ الہام کدھر ہے؟ اگرچہ وہ الہام کا ہماری، کیونکہ یہ تحقیق سچی ہے، بات سچی ہے، قبر سچی ہے، کسی بات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال یہ چونکہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، آج ہم انشاءاللہ یہ سوال بھی ان سے پوچھیں گے کہ وہ الہام حضرت مسیح السلام کا وہ کہاں پر ہے، ہمیں بتائیں۔ اچھا جی آگے چلیں۔ توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ آج میں نے جس قبر پہ قادیانی جماعت کی عمارت کھڑی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ آج ملیہ میٹ کر دینا ہے۔ جی میرے بھائیو، آپ نے دیکھا الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملیہ میٹ ہوا تو کیا ہوا۔ بہرحال آگے چلیں۔ سامعین کرام، مرزا قادیانی اسی کتاب کے پیج نمبر 170 پہ لکھتا ہے، یہ پیارے بھائیو، یہ
शमसुद्दीन साहब पर। ये देखें, ये है 170। अब ये इस इबारत को पढ़ने लगे हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा पर ये कि किस तरह इन्होंने अवाम के सामने झूठ बोले हैं, सुने ज़रा। कि इस शहर के शिया लोग भी कहते हैं कि ये किसी नबी की कब्र है जो किसी मुल्क से बतौर सियाहत आया था और शहजादे के लक़ब से मौसूम था। नाज़रीन किराम, अपने घर में किसी बच्चे को बुलाइए जो थोड़ा समझदार हो, उससे पूछे कि बेटा शहजादा किसको कहते हैं, असल में हकीकत में शहजादा कौन होता है, तो आप वो कहेगा कि बादशाह के बेटे को कहते हैं शहजादा। जी, अब ये प्यारे भाइयों मैंने इसलिए क्लिप लिया इनका कि शमसुद्दीन साहब से आज हम इंशाल्लाह ये पूछेंगे कि ये जो इन्होंने बात की कि शहजादा कौन होता है, क्या इन्होंने इस बारे में तहकीक की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको भी शहजादा के लक़ब से ईसाई आज भी याद करते हैं और हमारे पास उसके सबूत हैं। तो शमसुद्दीन साहब ज़रा तैयार रहें, हम आगे चलते हैं प्यारे भाइयों। और बादशाह की बेटी को शहजादी कहते हैं, ये तो हर बंदे को पता है। यकीनन मिर्जा कादियानी को भी पता होना चाहिए था कि शहजादा क्या होता है। उनका शियों ने मुझे एक किताब, ये अब इबारत का हवाला शुरू होने लगा प्यारे भाइयों, भी दिखलाई जिसका नाम ऐनुल हयात है। इस किताब में बहुत सा किस्सा लिखा हुआ है। आगे कहता है एक और किताब का भी नाम लिया है, इंशाल्लाह उसमें भी वीडियो बना के आपको पेश करूंगा। कहता है लेकिन वो तमाम बेहुदा और लग़्व किस्से हैं। ये जो ऐनुल हयात है और दूसरी किताब है, कहता है इनमें बहुत से किस्से हैं मगर ये लग़्व हैं, बेहुदा हैं। सिर्फ इस किताब में इस कदर सच है। चले हम बाकी किस्सों को छोड़। ये देखें प्यारे भाइयों, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो हमने आपको इबारत पढ़ाई वो क्या है, लेकिन वो तमाम बेहुदा और लग़्व किस्से हैं। सिर्फ इस किताब में इस कदर सच है कि साहिब किताब कबूल करता है कि ये नबी सियाह था और शहजादा था जो कश्मीर में आया था। और अब देखें शमसुद्दीन साहब इस बात को बयान ही नहीं करते कि साहिब किताब ने क्या कबूल किया है। ये अवाम को ये गुमराह करने लगे हैं कि गोया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये जो ख़त छापा था इसके मुताबिक बाकी सारे किस्से तो लग़्व हैं, लेकिन इब्ने बाबिया वाला जो यूसुफ से मुतल्लिक़ किस्सा है वो सच है। सुने जरा। छोड़ देते हैं। मिर्जा कादियानी जिसको सच कह रहा है उसको चेक कर लेते हैं। सुना जरा, सुना मेरे भाइयों। और इसके साथ हमने ये भी देखना है कि मिर्जा कादियानी ने ये सच अपनी किताबों में लिखा है या मिर्जा कादियानी ने झूठ करके आगे लिखा है। अच्छा नाज़रीन किराम, इसकी मैं आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ तो चूँकि उसके दौरान आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई है। जी अब हम इस किताब के दोस्तों बता दें आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी ठीक आ रही है, थोड़ी निस्बतन आगे से कम हो गई है लेकिन आ रही है आवाज़। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। कादियानी कहता सिर्फ ये किस्सा सच्चा है। यहाँ यूट्यूब में आप फुल देख रहे हैं ना, वहाँ फुल कर। ठीक है, नहीं आवाज़ वहाँ मुझे लग रहा है आवाज़ यूट्यूब में जो अच्छा, है ना वहाँ पे आवाज़ वाला। हाँ ठीक हाँ, है, नहीं ये। ठीक कह रहे हैं, मेरा वो माइक लग गया वहाँ पे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ले जी मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि जो बात मिस हो गई है। या मिर्जा कादियानी ने झूठ करके आगे लिखा है। अच्छा नाज़रीन किराम, अब हम इस किताब के उस सफ़े पे जाते जहाँ ये किस्सा लिखा है और मिर्जा कादियानी कहता सिर्फ ये किस्सा सच्चा है। ये कहता देखें, लेकिन वो तमाम देखा मेरे भाइयों, और मिर्जा कादियानी कहता है सिर्फ वो किस्सा सच्चा है। किस कदर झूठ बोला है इन साहब ने, ये जनाब कहाँ लिखा है शमसुद्दीन, हम अभी आपको लाइव पूछेंगे इस डॉक्टर साहब मेरे पास आपकी आवाज़ कट के आ रही है, मुझे नहीं पता वो मेरे और आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है या पब्लिक को भी ऐसे ही आ रही है, जरा चेक कर लें फिर आप बात करें। ठीक है। अरे भैया अगर तो मुझे लिख के बता दें कोई दोस्त कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आवाज़ बिल्कुल कट के आ रही है और बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लें फिर मेरा ख्याल है हो जाएगी। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। आप सलीम भाई अपनी उतनी देर तक अगर कोई बात बयान करते हैं। जी जी मैं कर देता हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, मोहतरम डॉक्टर साहब की जो इंटरनेट का कनेक्शन है, जब वो मेरा ख्याल है लाइव चला रहे हैं इसको यूट्यूब से, तो वो चूंकि वहाँ थोड़ा लोड होता है तो उस वजह से कोई इंटरनेट के कनेक्शन में थोड़ा
वो लैगिंग आ जाती है, यानी कि वो रुक रुक के चलने लग जाता है। तो वो अभी उसको चेक कर लेते हैं और आइंदा से उम्मीद है कि वो रिकॉर्ड कर लेंगे इसको, या इसको ऑफलाइन करके यानी कि वो डाउनलोड कर लिया करेंगे वीडियो। फिर ये निस्बतन आसानी ज़रा हो जाती है कि वो फिर, चूंकि ये कनेक्शन जो है लाइव चल रहा होता है और इसका भी ताल्लुक इसी से होता है कि आपके नेट की स्पीड क्या है। तो दो चीज़ें, अगर नेट से दूसरी वीडियो वगैरह भी चलाने लग जाएं तो वीडियो हाई क्वालिटी में अगर चलाएं तो उससे नेट की कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर साहब आपको मुख्तलिफ वीडियोस दिखा रहे थे, अभी आगे हैं डॉक्टर साहब, आज ही करें बात। अभी अभी देखें मेरी आवाज ठीक हुई अभी है ठीक क्या है। नहीं? अब वो ठीक मैं है। आपको बता रहा हूँ, शायद आपने सुना नहीं। ये जब बेहतर होता है कि इसको डाउनलोड कर लिया करें, क्योंकि जब उसको आप चलाते हैं ना तो आपका और उसके कनेक्शन में प्रॉब्लम की वजह से लैगिंग फिर आने लग जाती है। जो आप लाइव वीडियो चला रहे हैं ना आप, ठीक है। उसकी वजह से। बहरहाल ठीक है, आप करें बात, अब उम्मीद है मेरे कि सही होगी। चले ठीक है, मेरे पास वैसे वो डाउनलोड शुदा पड़ी है, मैं वहीं से दिखा देता हूँ। जी वो बेहतर। तो ठीक है, मैं वो उसको वहां से दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये तो मैंने वैसे ही वो मैं इसलिए भी मैं किसी वजह से मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी थी, मैं डाउनलोड वाली दिखा देता हूँ। पर प्यारे भाइयों, जिस जब मैं अभी जो वीडियो देख रहा हूँ फिर आपको दिखाने के लिए, अब ये देखें कि आपको जो हमने मसीह मौद अलैहिस्सलाम का जो कलाम था, जो हमने पहले आपको पढ़ के सुनाया, फिर हमने आपको मसीह मौद अलैहिस्सलाम का जो कलाम है उससे मुतअल्लिक है जी, जो शमसुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने जो जो झूठ अवाम के सामने पेश किए, वो हम आपको उन्हीं की वीडियो की सूरत में हम दिखला रहे हैं। और देखिए बड़ी मैं हैरान होता है, मैं मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही थी जब मैं ये ज़ाहिर है जब हमें तो अच्छा एक और बात भी है प्यारे भाइयों, मज़ेदार कह लें इसको, जो भी कह लें, कि हमें हमारी टीम को ज़ाहिर है ये जो इनकी वीडियोस थी ये तो हमने शुरू में देख ली थी, है जी, हमने ये वीडियोस हमारे सामने थी, लेकिन हमें ये कहें कि हमने महज अल्लाह के फजल से हमें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि हमने इनकी जो भी बातें थी उनको बर्दाश्त किया। हालांकि हमें तो शुरू में पता चल गया था कि शमसुद्दीन साहब ने किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाया है, किस तरह से ये अवाम के सामने ऐसे ऐसे झूठ पेश कर रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहरहाल हमने सब्र के साथ इनको इस मामले को खूब मशहूर होने दिया, और जैसा कि हमारा इरादा था और हमने शुरू में इनको कहा था, हमने वो मशहूर जब वो हो गया मामला तो आज हम अब अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। बहरहाल हम चलते हैं उसी वीडियो की तरफ। तो अब दोस्त जो है वो मुझे बता भी दीजिएगा कि वो वीडियो जब मैं दिखाऊंगा कि वो अब ठीक आ रही है, उसकी आवाज़ या कटनी शुरू हो जाती है। जी जी आप ठीक है, तो ये प्यारे भाइयों वीडियो है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, ये ज़रा बताइएगा। जाते जहाँ ये किस्सा लिखा और मिर्जा कादियानी जी जी ठीक है। ठीक है, चलें जी हम चलते हैं वहां तक जहाँ पे लेकिन वो तमाम बेहुदा और लंग किस्से हैं। कहता लेकिन वो तमाम बेहुदा। ये प्यारे भाइयों देखें, मैं आपको ये दिखला रहा हूँ कि शमसुद्दीन साहिब ने यहाँ पर ये इबारत पढ़ी भी कि लेकिन वो तमाम बेहुदा और लगव किस्से हैं, लेकिन अवाम के सामने ये झूठ बोलते रहे कि गोया मिर्जा साहब ने बाकी सारे किस्सों को उस किताब में लगव कहा है, लेकिन इस एक किस्से के बारे में कहा है कि नहीं ये ठीक है। किस कदर ये गलत बयानी की इन्होंने। बारह जी आगे चलते हैं। और लंग किस्से हैं, कहता लेकिन वो तमाम बेहुदा और लंग किस्से हैं। ये है इसका पेज 361, ये लिखा हुआ है किस्सा बलौर और यूज आसफ। नाज़रीन इकराम, मेरा अहमदियों से सवाल है कि जब मिर्जा कादियानी ने ये किताब देखी, उसने ये पढ़ी, तो क्या उसने ये नहीं पढ़ा होगा कि इस बच्चे का नाम इस शहजादा है यूज़ आसफ, इसका वालिद मौजूद है और बादशाह है, इसीलिए शहजादा कहला रहा है। मिर्जा कादियानी ने बहुत दफ़ा अपनी किताबों में शहजादा यूज़ आसफ लिखा हुआ है, मगर उसके बावजूद मिर्जा कादियानी कहता है ये ईसा अलैहिस्सलाम है। ये देखें प्यारे भाइयों, हम आपको इंशाल्लाह, हमने पिछली दफ़ा भी आपको जिक्र किया था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वाकई शहजादा ईसा के नाम से पुकारा जाता है, शहजादा मसीह के नाम से पुकारा जाता है।
शम्स उद्दीन साहब जो हैं, ये इनको जो कि जितनी इनकी रिसर्च है, बाबा हम इनसे आज पूछेंगे क्योंकि रिसर्च की सी या नहीं की सी, लेकिन ये देखें अवाम को किस तरह ये वहाँ पर बेवकूफ़ बनाते रहे कि गोया हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जी कोई गलत बात लिख दी है। बहरहाल आगे चलते हैं। बस यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये शख्स जो है ये बादशाह का बेटा है, शहजादा यूसुफ असफ, और मिर्जा कादियानी अपनी तमाम किताबों में शहजादा यूसुफ असफ का नाम लेता है। ये भी इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला प्यारे भाइयों, ये सारी किताबों पे इन्होंने हाथ फेर दिया कि जिस तरह सारी किताबों में यूस आसिफ का किस्सा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने लिख के कोई बहुत बड़ी गोया कोई इमारत खड़ी की है। क्यों? इसलिए कि अवाम को ये गुमराह करना चाहते थे कि ये इतनी ज़बरदस्त ये जमात अहमदिया के मुताबिक ये कोई ये किस्सा है या ये बात है या ये दलील है कि अगर ये टूट गई तो ये सारी किताबें जो हैं वो उनके गोया दलाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये भी कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने। हालांकि जो कब्र मसीह है, एक तो पहली बात है मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो असल है उसको पहले बयान किया है 1891 और उसके बाद मुसलसल बयान किया है, ठीक है जी, उसको तो आप बिल्कुल नाम ही नहीं लेते उसका। और दूसरा ये कि कब्र यूस आसिफ से मुतल्लिक ये सारी किताबों में जिक्र है जी, इसका मतलब है कि तुम यह किताबें नहीं पढ़ी हुई। बहरहाल जी आगे चलते हैं। अगर किसी एक किताब के अंदर मिर्जा कादियानी ने ये नहीं बताया क्या कि ये बादशाह का बेटा है, शहजादा कहते रहे, मगर ये ना बताया कि इसका बाप बादशाह था। जी मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं अगली वीडियो बनाऊं आपको दिखलाऊं, ये जो बात है कि किसी किताब में नहीं बताया, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बार बार ये बताते रहे कि जो शहजादा यूस आसिफ है उसको एक उनके शहजादा के नाम उसके साथ इस्तेमाल करने को हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक दलील के तौर पर लिया है। क्यों? क्योंकि शम्सुद्दीन साहब को तो पता ही नहीं होगा कि जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डॉक्टर साहब एक गुजारिश, जी ये स्क्रीन कर देंगे शेयर? स्क्रीन मैंने शेयर तो की हुई है मेरे वाली। हाँ। अच्छा मैं अभी करता हूँ जी। अच्छा, उसमें एक थोड़ा सा मेरे आया भी है, वो भी मैं आपसे पूछता हूँ, आप चूंकि इस पे ज्यादा काम करते रहे हैं। ये वही एतराज है जो अभी आपने वीडियो में सुनाया है ना कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहीं भी उसको ये नहीं बताया कि वो बादशाह का बेटा था। ये ऊपर एतराज आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा ये, और ये रेफरेंस है इसका यूट्यूब का। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि या तो शम्स साहब का कोई चैनल होता था जो बंद हो चुका है और ये इनका नया चैनल है। ये वीडियो कोई भी, मैं जितने भी नोट्स बनाए हुए हैं कोई भी चल नहीं रही, उस पर ये एरर आ रहा है कि वीडियो अनअवेलेबल, या इन्होंने वीडियो हाइड कर दी है या डिलीट कर दिया। लेकिन वही वीडियो आप सुनवा रहे हैं जो, या इस तरह की बात शम्स साहब ने मुख्तलिफ वीडियोज में की थी। तो उस वक्त मैंने ये सारे रेफरेंस भी निकाल के रखे हुए हैं। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 18 है, अल हुदा सफ़ा नंबर 361, ये लिखा हुआ है इन्नहु कब्र नबीयुन काना इब्नु मालिकिन, कि वो नबी की कब्र है और वो बादशाह का बेटा था। ये शम्स साहब बड़ा लोगों को बताते हैं जी अहमदियों ने कभी किताब नहीं पढ़ी, और मैंने सारी पढ़ी हुई है। तो ये एक नहीं हजारों सबूत हम इस चीज का दे सकते हैं कि ये इन्होंने नहीं पढ़ी हुई, या पढ़ी भी हैं तो ध्यान से नहीं पढ़ी हुई। इन्होंने मुखालिफ की कोई किताब पढ़ी, सबूत हाजिर है, या कोई एहतसाब कादियानियत वगैरह इस तरह की कोई पढ़ी है, और मुफ्ती मुबशर हुसैन की तरह इन्होंने अंदर से टोटे निकाल के तो वो रखे हुए हैं। अगर पढ़ी होती, या फिर इनको जाहिर बात है उर्दू भी मुश्किल से ये पढ़ते हैं, अरबी कहाँ इन्होंने पढ़नी थी। लेकिन मैं आपको एक और हवाला दिखाता हूँ जहाँ साथ उर्दू भी मौजूद है, और ये दूसरी किताब है, ये और किताब है। ये देखें रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा 361 अल हुदा, और ये है अल हुदा व तबसरा लिमन यरा। ये हो सकता है वही किताब हो। ये 173 नंबर सफ़ा है, वो 361 नंबर सफ़ा है। ये है जी उर्दू तर्जमा, ये उर्दू तर्जमा है। ये लिखा हुआ है कब्र नबीयुन काना इब्नु मालिकिन, और वो बादशाह का बेटा था, ये लिखा हुआ है। और उन्होंने किताब का नाम जब बताया है तो आपसे तो कोई चीज उन्होंने छुपाई नहीं। इन्होंने कहा है जो रतबो याबस उसमें लिखा हुआ है किताब में, पढ़ना है तो जाके उस किताब में तफसील पढ़ लो, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक झूठा इल्जाम है। मैंने कहा मेरे पास ये पड़ा हुआ था, और साथ मुझे इस मसला की भी समझ नहीं आई कि मेरे पास जितने भी ये लिंक है ना, कोई भी इसमें से चल नहीं रहा। तो वो फिर अगर तो नई इनके चैनल में वो वीडियोस हैं या आपके पास हैं, वो फिर मैं बाद में आपसे ले लूंगा। जी आगे आप करें। जी जज़ाकल्लाह। मैं बता देता हूँ आपको, वो ये है कि शम्सुद्दीन साहब का चैनल चूंकि वो बंद हो गया था, वो जो वीडियोस हैं वो उस चैनल के लिंक हैं आपके पास। एक तो ये कि मैंने चूंकि वो डाउनलोड की थी उस वक्त भी, तो मेरे पास तो डाउनलोड शुदा मौजूद है पहली वीडियो,
लेकिन इन्होंने दोबारा अपने चैनल पर दोबारा वो अपलोड की है, लेकिन वो नवंबर की नहीं है, वो उससे अगले साल में जब इनका चैनल दोबारा हुआ है नया चैनल, तो तब की है वो, तो वहाँ पे मौजूद है ये वीडियोस। जी ठीक है, वो मैं चेक कर। ठीक है, अच्छा जज़ाकल्लाह सलीमीर भाई। हम बहरहाल इस वीडियो को मज़ीद सुनाते हुए आगे चलते हैं, लेकिन मैं जो सलीमीर भाई अपनी की बात भी देख लें, मसीह सलाम ने वहाँ पे बयान किया, और फिर ये कि जो मैं जो बात बयान कर रहा था कि शमसुद्दीन साहिब इनकी आदत होती थी कि जहाँ कहीं लोगों को ये गुमराह करने जाते थे या यूट्यूब पे भी कहते थे, लो जी आप ये बताएं कि जी शहजादा कौन होता है। एक बच्चे को इन्होंने पकड़ लिया था जब ये एक जगह किसी जगह पे गुमराह करने गए हुए थे और मेरी इनसे लाइव गुफ्तगू हो रही थी, लो बेटा बताओ शहजादा कौन होता है। तो जी बादशाह के बेटे को शहजादा कहते हैं। देखा जी मिर्जा साहब ने क्यों नहीं बताया ये अवाम को, और शमसुद्दीन साहब को शायद खुद ही नहीं पता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अब भी जो ईसाई हैं वो प्रिंस ऑफ पीस के नाम से पुकारते हैं, अमन का शहजादा। जी बहरहाल आगे चलते हैं। ये डॉक्टर साहब इसमें एक चीज छोटी सी मैं ऐड कर दूं, ये मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर भी, ये बाइबल है और बाइबल के नए अहदनामा की पहली किताब है मती की इंजील। ये उसमें सबसे पहले उन्होंने यसू, जिसको वो ईसा या यसू जो भी मानते हैं, उसका नसब नामा लिखा है, यानी ये बताया है कि वो कौन था। ये ईसाइयों का अकीदा है कि यसू जो है वो दाऊद का बेटा है। और दाऊद क्या थे? दाऊद वो अपनी नजर में जो भी उन्होंने बाइबल में उनके बारे में बुरा लिखा हो, लेकिन जो हम मुसलमान मानते हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी थे और एक बादशाह थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक बादशाह थे, और हजरत यसू अलैहिस्सलाम के बारे में सबसे पहली लाइन जो लिखी है, यानी कि ये नए अहदनामे में जो ईसा अलैहिस्सलाम या यसू के बारे में है, सबसे पहली लाइन में लिखा है यसू मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। ये देख ले, पहले 2-3 लफ्ज ही इनको झूठा करने के लिए काफी हैं या इनके उस मुतालबे का जवाब है। यहां लिखा है यसू मसीह इब्ने दाऊद, और दाऊद कौन था? ये भी मानते हैं कि दाऊद बादशाह था। और यहां उन्होंने यसू को क्या लिखा है? इब्ने दाऊद। और लिखा क्यों है कि पुराने अहदनामे के अंदर यह पेशगोई थी कि दाऊद की नस्ल से एक बच्चा पैदा होगा जो यहूदियों को मुश्किलात से निकालेगा और उस कौम को गैर कौमों से छुड़ाकर एक सल्तनत देगा और उस कौम का बादशाह बनेगा। अगर आप इसको मजीद आगे पढ़ें तो जब यसू के सलीब देने का वाकया आता है इसमें आखिर पे, हर चारों इंजीलों के आखिर पे, तो उसमें उनकी सलीब के ऊपर एक फटी लगाई गई थी जिसपे लिखा था यहूदियों का बादशाह। और उसकी बैकग्राउंड भी बिल्कुल यही थी कि चूंकि उनका दावा था कि एक पुराना मसीह आएगा या पुराने एक नए वक्त में एक ऐसा मसीह आएगा, और जो इनका सबसे पहला बादशाह हुआ है यहूदियों का साउल, वो भी बादशाह था। इसलिए उनका यह तस्वर था कि जो भी बंदा छुड़ाने आएगा वो एक दुनियावी बादशाह होगा। लेकिन हजरत यसू के बारे में यहां लिखा है कि उन्होंने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, मैं खुदा की बादशाही की तरफ तुम्हें बुलाने आया हूं। तो ये थोड़ा सा इशारा है इस चीज की तरफ। दूसरा, हम ये भी साबित कर सकते हैं कि अगर सिर्फ हजरत मरियम का भी उनको समझा जाए, और जिस तरह ईसाइयों ने लिखा है कि वो यूसुफ नजार का बेटा था, हम उसको छोड़ दें, तो हजरत मरियम भी बादशाहों की नस्ल से थी। इसके भी सबूत मिलते हैं। इससे भी पता चलता है कि वो बादशाहों की नस्ल से थे, यानी बादशाहजादे थे, और वो शहजादे थे। और शहजादा, बादशाह का बेटा किसी को लिखना या शहजादा लिखना, ये दोनों एक ही बात है। और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब शहजादा लिखा तो ये एतराज करने वाला ही बेवकूफ है कि उसको बादशाह का बेटा नहीं लिखा। शहजादा होता ही बादशाह का बेटा है। बहरहाल अब आगे बात शुरू कर। जी जी ज़ाकल्लाह। अच्छा मुझे बता दें कि मेरा वो आ रही है जो मेरी वीडियो नहीं, स्क्रीन शेयर करें। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त, आप अपनी शेयर करें। ठीक है, मैंने, चलिए मैं अपनी स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। अभी भी आपकी आ रही है? अच्छा मैं आपकी वाली जो है उसको करता हूँ रिमूव। नहीं, आप शेयर करेंगे ना अपनी, ये खुद ही खत्म हो जाएगी, या मैं रिमूव कर देता हूँ कहते हैं। आप अपनी रिमूव कर दे तो अच्छा। आप अच्छा अभी भी नहीं, मेरे में स्टॉप करके दोबारा करना पड़ेगा। हाँ नहीं, उसको आप शेयर दोबारा करें स्क्रीन को। हाँ जी दोबारा शेयर करता हूँ। ले जी, ये स्क्रीन शेयर हो गई और ये आ गई वीडियो। ठीक है जी, अब आ गई है, आ रही होगी मैं कर दी। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें जी, अब आगे चलते हैं, देखते हैं शमसुद्दीन साहब ने क्या क्या, जनाब मुहक्किक शमसुद्दीन साहब ने क्या क्या आवाम को बेवकूफ़ बनाया। सुने जरा। जिला नंबर 17 इसको देखते हैं तो इसके अंदर मिर्जा कादियानी ने क्या लिखा है। ये प्यारे भाइयों बड़े ही
गौर से सुनिएगा, क्योंकि शमसुद्दीन साहब ने इस में तो वो कहते हैं ना सरी झूठ, एक सरी झूठ बोलने लगे हैं। ये भी इंशाल्लाह इनसे हम पूछेंगे कि मतलब कहना तो बंदा इनको ये चाहिए कि आपको जुर्रत कैसे होती है कि आप हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताब से मुतल्लिक इतने बड़े बड़े झूठ बोलते रहे। अस्तगफिरुल्लाह, सुने जरा। ये देखिए जिल्द नंबर 17 है आपके सामने। इसमें मिर्जा कादियानी कहता है, पेज नंबर है 100। अच्छा, कहता है इसमें साफ लिखा है कि एक नबी यूज़े आसफ के नाम से मशहूर था और उसकी किताब का नाम अंजील था। नाज़रीन और सामीन करम, ये वो किताब है जिसके मिर्जा कादियानी ने कहा ये कुरान पाक है। इस किताब को पूरी पढ़ लीजिए, इसके अंदर किसी किस्म की अंजील का कोई जिक्र नहीं है। जी मेरे भाइयों, सुना आपने? शमसुद्दीन साहब ये दावा कर रहे हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने किताब रूहुल हयात से मुतालिक अपनी जिल्द 17 जो है उसमें ये लिखा है, उसके सफ़ा नंबर 100 पर, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी किताब का नाम अंजील है। ठीक है जी। और कहते हैं कि ये रूहुल हयात के से मसीह इस्लाम ने लिखा है कि उस किताब में लिखा हुआ है, रूहुल हयात में। ठीक है, आप ये दोबारा देख लें। शमसुद्दीन साहब जिस किताब को दिखा रहे हैं वो है रूहुल हयात। ठीक है जी। अब देखें मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने क्या लिखा है, ये वही है जी, सफ़ा नंबर 100 जिल्द नंबर 17। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हकमो अदल हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जिनके बारे में ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठे झूठे हवाले खुद ही घड़ के लोगों में मशहूर करते हैं। हुजूर फरमाते हैं किताब स्वाने यूज आसिफ, क्या लिखा है? किताब स्वाने यूज आसिफ। और शमसुद्दीन साहब क्या दिखा रहे हैं लोगों को? रूहुल हयात है जी। ये देखें, पीछे के कर लेते हैं, आपको दोबारा जरा सुन लें। शमसुद्दीन साहब ने कौन सा हवाला पढ़ा था, शमसुद्दीन साहब ने किस हवाले का जिक्र किया था, सुने जरा। इसमें साफ लिखा है कि एक नबी, पेज नंबर 17 है आपके सामने। इसमें मिर्जा कादियानी कहता है, पेज नंबर है 100। अच्छा, कहता है इसमें साफ लिखा है कि एक नबी यूज़े आसफ के नाम से मशहूर था और उसकी किताब का नाम अंजील था। नाज़रीन और सामीन करम, ये वो किताब है जिसके मिर्जा कादियानी ने कहा ये देखें प्यारे भैया, रूहुल हयात दिखा रहा है, ये बंदा बोल रहा है रूहुल हयात। और जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने किताब लिखी वो है किताब स्वाने यूज आसिफ, जिसकी तालीफ को 1000 साल से ज़्यादा हो गया है। उसमें साफ लिखा है कि एक नबी यूज आसिफ के नाम से मशहूर था और उसकी किताब का नाम इंजील था। ये होते हैं इस्लाम के नाम पर झूठ बोलने वाले लोग, खुद ही घड़ के प्यारे भाइयों ये हवाले बनाते हैं। और अब आपको समझ आई है क्यों ये छोटी सी चिट ये बंदा नीचे लगाता है, इसलिए ताकि कोई बंदा चेक ना कर ले, क्योंकि जहां भी ये थोड़ा सा भी बड़ा कर दे इस चिट को तो इसका झूठ ऊपर नीचे दाएं बाएं से कहीं ना कहीं से खुल जाता है। बहरहाल आगे सुने जनाब, ये भाई साहब मुहक्कक साहब 1 मिनट इधर ही अगर रखें, अगर इसके बाद मुझे बता दें कहीं ये दोबारा जिक्र आता है इसका, ये जो कह रहा है कि जो इंजील का जिक्र करते हैं और वो इसमें नहीं लिखा हुआ। मैं आपको एक शेयर करता हूँ 1 मिनट सिर्फ। ये पूरा, ये देखिए पूरा सफ़ा 100 है, 100 पूरा। ठीक है। अच्छा, सफ़ा नंबर 100 के ऊपर ये जो किताब दिखा रहा है जी, ये इस किताब का मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जिक्र भी नहीं किया हुआ। ये देखें, सिर्फ एक किताब, इस किताब का जिक्र किया है, किताब स्वाने यूज आसिफ जी। यही मैं मेरी जरा स्क्रीन शेयर करें। जी जी। ये जो कह रहा है ना कहीं भी जिक्र नहीं है उसका, वो किस्सा बलोहर और यूजासफ जो किताब है उसका हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जिक्र कर रहे हैं, जिसको हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने वहां लिखा है कि उसकी जिंदगी के वाकयात यूजासफ वाली किताब से देखें, उसमें उसको इंजील कहा गया है। ये उसकी अरबी इबारत है, बगैर जेरों जबरों के है। ये हमारे पास असल स्कैन भी मौजूद है, ये टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, सर्चेबल उसको बनाया हुआ है उस मकसद के लिए। तो ये भी हम आपको दिखाने के जिम्मेदार हैं। असल
किताब बिल्कुल। का सफ़ा। इसका तर्जमा है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं, जिससे पता चलता है कि वो भी जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि वो अपनी किताब को, या वो उनकी इंजील का मकसद क्या था। इंजील कहते ही खुशखबरी को है, जी और जी हमारा ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील या खुशखबरी जो वो लोगों को देने आए थे, वो बजाते खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी थी, और वही इंजील थी जिसको वो दुनिया में फैलाने आए थे। तो ये टेक्स्ट जो है ये लंबा है, मैं इसमें से वो हिस्सा पढ़ देता हूं। वो कहते हैं जी, और यूसुफ चला और हरबा या गरबी की तरफ, यूसुफ चला सॉरी, बढ़ा यहां तक कि वो एक वसी फिजा में पहुंचा। बस इसने अपनी निगाह उठाई और एक अजीम दरख्त को देखा। अब ये इंतहाई अहम चीजें हैं, ये अभी हम आपको समझ लें कि टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखा रहे हैं, कि असल में इसके नीचे पूरी दास्तान और पूरी वो चीजें हैं जो साबित करती हैं कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे जिनको एक किस्से के रंग में यहां बयान किया गया है। और अगर किसी ने बाइबल पढ़ी हो, इस बेचारे को तो तहकीक की क्या तौफीक मिलनी है। अगर कोई क्रिश्चियन जो इनके पास इनकी मदद के लिए आते हैं, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो उनको पता होगा कि हजरत यीशु की जो तालीम इंजीलों में लिखी हुई है वो पैराबल्स पे मुश्तमिल है, मिसाल तमसीलों पे मुश्तमिल है। वो हमेशा तमसीलों में कलाम करते थे, और ये भी लिखा हुआ है कि अक्सर उनके शागिर्द उन तमसीलों को गलत समझते थे, यानी कि वो कहते कुछ थे और वो समझते कुछ थे, और वो कहते थे कि बेवकूफो कब तुम मेरी बात सही समझना शुरू करोगे। तो यहां भी आप देख लें, एक छोटा सा पैरा जो हमने अंदर से लिया है उसमें भी एक तमसील बयान हुई है। वो कहते हैं कि एक अजीम दरख्त उसने देखा जो एक चश्मे के किनारे पर था। ये दरख्त दरख्तों में सबसे बड़ा, आज आप देखें क्रिश्चियनिटी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब है तादाद के लिहाज से। बेशक उनके अकायद गलत हो चुके हैं, लेकिन यह बात जो 1000 साल पहले लिखी गई, अगर यह दुरुस्त साबित हुई है, तो यह भी एक तरह का इस चीज का सबूत है कि इसमें कुछ ना कुछ हकीकत तो जरूर है, और इसका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई ना कोई ताल्लुक भी जरूर है। उन्होंने एक देखा नजारा कि एक अजीम दरख्त को देखा जो एक चश्मे के किनारे पर था। यह दरख्त दरख्तों में सबसे बड़ा, और इसकी टहनियां और शाखें निहायत हसीन, और इसके फल निहायत तैयब और शीरी हैं, और इस पर इस कदर परिंदे जमा है जिनका शुमार ही मुमकिन नहीं। अब उसकी वजाहत भी करते हैं कि इस मंजर ने इसको मसरूर किया और वो खुश हुआ। वो मजीद आगे बढ़कर इसके करीब हो गया और अपने आप में इसकी ताबीर और तशरीह करने लगा कि एक नजारा उसने देखा, एक ख्वाब या एक कशफ उसने देखा, एक रोया उसने देखी, जिसमें अल्लाह ताला ने उसको कोई पैगाम दिया। वो पैगाम क्या था उसकी खुद ही वो तशरीह भी बयान करता है। बस इसने इस दरख्त को तो इस बुशरा से तशबीह दी, और ये जो बुशरा लफ्ज है यही असल में इंजील लफ्ज है, कि उसने इसको इंजील कहा है कि ये इंजील है खुदा की, ये एक खुशखबरी है खुदा की जो खुदा मुझे दे रहा है, जिसकी तरफ वो हिदायत देगा, और पानी के चश्मे को हिकमत और इल्म से, और परिंदों को इन लोगों से जो इसके पास जमा होंगे और इसके हाथ पर दीन को कबूल करेंगे। ये देखें, मुख्तसर से वाकया में भी इस चीज का इशारा मिलता है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाकया को किसी ने एक किस्सा के रंग में बयान किया है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर कोई नावल पढ़ने का शौक रखता हो तो नजीम हिजाजी ने तारीखी वाकयात को किस्सों की सूरत में बयान किया है। उसमें बुनियादी हकीकत वो तारीख से ले लेता था, और उसके बाद वो करैक्टर खुद जनरेट करता था, अपने नाम उनको देता था, और एक मिली हुई सूरत हाल यानी कि हकीकत भी बयान करता था जो वाकयातन वहां हुई, और साथ अफसाने को दिलचस्प बनाने के लिए उसमें कुछ करैक्टर जनरेट करता था और कुछ तारीखी वाकयात इस तरह के जनरेट वो कर लेता था। तो ये भी इसी तरह का मामला है कि ये जो बलोहर का और यूसुफ का वाकया है, इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाकया को जो उनका बुनियादी तालीम और पैगाम था उसको इसी तरह बयान किया गया है कि इसमें उनको एक बलोहर कहते हैं जोहरी को। ये तो इन बेचारों को तहकीक से क्या ताल्लुक, वो किसी बुजुर्ग की किताब इन्होंने पढ़ ली और छापा मार दिया, और लोगों से ये बल्ले बल्ले सुनने के लिए कि बल्ले भी बल्ले, शम्स साहब ने बहुत बड़ी तहकीक पेश कर दी है, बस अब तो अहमदियत खत्म हुई के हुई। तो इन्हें लगा कि बस अब वो सारा कुछ खत्म हो गया और अहमदियों के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये मैं आपको असल किताब का स्कैन अगर दिखा सकूं, ये मैं दोबारा इसको खोलता हूं क्योंकि वो स्क्रीन दूसरी पे खुल गया है। मेरा वो पेज खुला है, मैं उन लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे पास वो असल पेज खुला हुआ है, जो ये वाला ये आ गया है। अच्छा ठीक है, आपके पास अरबी वाला, ठीक है। हाँ, ये देख लें कि इसमें अब इनको तो अरबी नहीं पढ़नी आएगी,
لیکن ہم آپ کو وہ حصہ جو ہے اس کا وہ دکھا دیتے ہیں جس میں سے جو ترجمہ میں نے یہ دیکھیں یہ وہ لکھا ہوا ہے یہ البشرا کا یہ میرے ماؤس پوائنٹر کے نیچے رکھا ہے فشبہ شجرۃ بالبشرا التی یدعو الیہا وعین ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ بشرا اور بشرا کہتے ہی انجیل کہتے ہی خوشخبری کو ہیں اور عربی میں اس کو بشرا کہتے ہیں تو یہ واقعہ بہت ساری زبانوں میں بیان ہوا ہے تو یہ صرف دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ ایک تو آپ نے یہ یا تو یہ غلط فہمی ہے کم علمی اور جہالت ہے یا یہ دھوکے بازی ہے تیسری کوئی صورت اس میں نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب کچھ اور بتائی اور انہوں نے وہ جو شعبدہ بازوں کی طرح چھنتر منتر کر کے اور آپ پوچھ رہے تھے جی یہ کیوں ایسے کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی کتابوں تک تو رسائی نہیں پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی بیچاری جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہی نہیں ہے اور جو پڑھ لکھ بھی سکتے ہیں وہ دیکھیں داور عزیز صاحب جیسا بندہ جو بہت ہی اپنی طرف سے بنتا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں اور میں بڑا جانتا ہوں دنیا کو بڑا سمجھدار ہوں اس کی یہ حالت ہے حالانکہ وہ پڑھ لکھ تو سکتا ہے نا اردو تو شاید وہ پڑھ ہی سکتا ہو تو وہ جب کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھتا کہ شمس صاحب نے اس کو کیا چورن دیا ہے میں کھول کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے یا کسی دوسرے بندے کی بات وہ کوٹ کر رہے ہیں اس نے جب یہ تکلیف گوارا نہیں کی تو عوام کا آپ حال دیکھیں کیا ہوگا جو پہلے تو خود پڑھ ہی نہیں سکتے پھر پاکستان کے اندر ہماری کتابوں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں یہ ہمارے اوپر پرچے کروا دیتے ہیں یار وہ اپنی کتاب دینا میں نے پڑھنی ہے کتاب لے کے تھانے چلے جاتے ہیں سیدھا یہ دیکھو اس نے مجھے تبلیغ کی ہے اس کے اوپر اب پرچہ کرو اور اس کو 3 سال کے لیے اندر کرو اور 50,000 روپیہ جرمانہ کرو تو اس مقصد کے لیے یہ کتابیں لوگوں کو ایسے گول مول باتیں کر کے دکھاتے ہیں کہ اکثر عوام جاہل ہے کئیوں کے پاس کتابوں کی ایکسیس نہیں ہے جن کے پاس ہے ان کو اللہ کرے کتاب کھولنے کی توفیق نہیں ہے اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ جو بندہ ان کے آگے لگا ہوا ہے توفیق اس کو بھی نہیں ہے یہ بھی کسی کی کتاب سے کوئی کاپی پڑھتا ہے اور وہ مبشر حسین بریلوی کی طرح آگے پیش کر دیتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے وہ جن کو میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے بڑے بڑے عالم وہ تو کرسچن عیسائی پادری ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے تو بہرحال یہ صورتحال آپ کو دکھا دی ہے اور مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ کو وہ اصل حوالہ بھی دکھا دیا جائے جی جزاک اللہ تعالیٰ سے جزا جی پیارے بھائی آپ نے دیکھا سلیم میر بھائی نے آپ کو اصل جو حوالہ ہے وہ بھی دکھا دیا یہ جو کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ جو کہ نیٹ پر آپ کو مل جاتی ہے یہ اس کے یہ میں دکھا رہا ہوں یہ صفحہ نمبر 604 پر وہی تحریر ہے جو کہ خاکسار نے یہاں سے پڑھ کے سنائی تھی سلیم میر بھائی نے بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے تو یہ بھی جس دوست نے پڑھنی ہو اور یہی وہ تحریریں ہیں جس سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب الہدیٰ میں یہ فرمایا تھا کہ پس جو سچ ظاہر ہو گیا ہے اسے پکڑ لے اور خود ساختہ باتوں کو چھوڑ دے اگر تجھے تفصیل چاہیے تو کمال الدین نامی کتاب کو پڑھ اور اس فکرہ کو پکڑ کر شمس الدین صاحب نے یہ جو ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے تھے پیارے بھائیوں یہ ابھی آگے آپ کو یہ پھر وہ چکمہ دیں گے دھوکہ دیں گے کہ گویا اس فکرے کا یہ مطلب ہے کہ سارا قصہ ہی سچا ہے بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اس ویڈیو کو سناتے ہیں مزید آپ کو جس کے مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ قرآن پاک ہے اس کتاب کو پوری پڑھ لیجیے ڈاکٹر صاحب قرآن ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹ بول رہا ہے جی یہ میں آپ کو بتانے لگا تھا یہ بندہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر پیارے بھائیوں روح الحیات کتاب کو دکھا کر یہ جھوٹ بول رہا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب جو ہے اس کے بارے میں اس نے یہ غلط بیانی کی کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب صوفہ گورودیہ کے صفحہ 100 پر روح الحیات نام کا ذکر کیا ہے روح الحیات کے بارے میں یہ لکھا ہے پڑھ لیں پیارے بھائیوں شمس الدین صاحب کی قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر جھوٹ بولنے کی یہ آپ کو میں نے اپنی زندگی میں بہرحال اس طرح سے کسی کو اتنے ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے نہیں دیکھا کہ کتاب کوئی اور ہے کتاب سوان یوسف کا مسیح السلام نے فرمایا اور شمس الدین صاحب نے دیکھیں روح الحیات کتاب قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک اور توجہ دلانی تھی یہ قرآن احمدیہ مسلم جماعت کا ہی قرآن ہے نا جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے شمس صاحب نے اور وہ جو یہ سمر رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ تذکرہ ان کا قرآن ہے تو یہ شمس صاحب کو تو سارا کچھ پتا تھا یہ ہاتھ میں احمدی مسلمانوں کا قرآن انہوں نے پکڑا ہوا ہے تو اس وقت ان کو توجہ دلانی چاہیے تھی جی بکریں ابا جی وہ یہی بات ہے نا کہ جس طرح خاکسار نے عرض کیا ہے جاہلوں کے سردار ہیں ماشاءاللہ بہرحال آگے چلتے ہیں انجیل کا کوئی ذکر نہیں ویسے بھی میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے
یہ دیکھیں باقاعدہ قرآن پاک کو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے, سنیں ذرا. مرزا قادیانی نے کہا یہ قرآن پاک ہے, اس کتاب کو پوری پڑھ لیجئے, اس کے اندر کسی قسم کی انجیل کا کوئی ذکر نہیں. جیسے میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے, اس کے اندر اللہ پاک نے انجیل کا ذکر کیا ہے, اس کتاب کے اندر انجیل کا ذکر ہی نہیں ہے. اور مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ ایک نبی یوز آصف کے نام سے مشہور تھا اور اس کی کتاب کا نام انجیل تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب کیا کہا جائے, اس قرآن کے اندر عیسیٰ ابن مریم کے لیے انجیل کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس پوری کتاب میں یوز آصف کے لیے انجیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا. چلیں آگے چلتے ہیں. جی میرے بھائی آپ نے سن لیا. نے اپنی اس کتاب جو میں نے روحانی خزائن جلد نمبر 14 کا پیج 170 آپ کے سامنے پیش کیا تھا, وہاں 2 کتابوں کا نام لکھا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ پہلے ایک کتاب پیش کی جائے پھر دوسری کتاب پیش کی جائے. تو آج میں آپ کے سامنے وہ دوسری کتاب یہ ہے, اس کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمت. اب کمال الدین کے اندر مرزا قادیانی نے جو کہا ہے کہ ان 2 کتابوں کے اندر یہ قصہ سچ ہے, لیکن وہ تمام قصے. یہ دیکھیں پیارے بھائیوں, یہ پھر کس قدر یہ بندہ جھوٹ بول گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق سری جھوٹ بولا ہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے قصے کو سچ قرار دیا ہے. سنیں ذرا. اب کمال الدین کے اندر مرزا قادیانی نے جو کہا ہے کہ ان 2 کتابوں کے اندر یہ قصہ سچ ہے. یہ دیکھیں پیارے بھائیوں, یہ کیا ہے, یہ تو پائس پیریڈ صاحبہ سے پوچھنا چاہیے. وہ اس دن بتا رہی تھی کہ جناب یہ جھوٹ اور دغا اور پتہ نہیں کیا کیا, اور پھر ساری احادیث اور مسیح السلام کا کلام. اب یہ دیکھیں کس کے اوپر پیارے بھائیوں وہ سارا فٹ آ کے بیٹھ رہا ہے. یہ ان صاحب کے اوپر جنہوں نے 2 سال تک عوام کے سامنے سری جھوٹ بولے, لیکن وہ تمام قصے بیہودہ اور لغو ہیں. یہ میں نے آخر پہ ان کا وہ جو قصہ یہ خود پڑھ گئے تھے اپنی ویڈیو میں, یہ میں نے آخر پہ ایڈ کیا ہے ان کو شرم دلانے کے لیے. لیکن وہ تمام قصے بیہودہ اور لغو ہیں, تو میں نے سوچا یہ سچ آپ کے سامنے ضرور پیش کیا جائے تاکہ آپ اس سچ سے واقف آگاہ ہو سکیں. اچھا یہ میرے بھائیو یہ کرتے کیا تھے, یہ عوام کو یہ پڑھ کے مسیح السلام کا کلام اور تاثر یہ دیتے تھے کہ گویا جس طرح کہ آپ نے سنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک قصہ جو ہے وہ سچ ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ اس کے اوپر اپنی طرف سے اس قصے کے بارے میں اس کو لے کے پھر کبھی قرآن پاک سے کمپیئر کر رہے ہیں, کبھی کہیں کمپیئر کر رہے ہیں. اور بھائی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح طور پر جو اس قصے میں سچ تھا وہ معین طور پر ہمیں بتا دیا کہ یہ بات سچ ہے. باقی سب کے بارے میں جماعت کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ لغو اور بیہودہ بات قصہ ہے. لیکن آپ عجیب انسان کیا کہے, انسان کو ظاہر ہے ہمیں غصہ بھی آتا ہے ہمیں, لیکن ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ یقین کریں کہ اگر یہی حرکت ہمارے میں سے کسی نے کی ہوتی تو ان لوگوں نے وہ وہاں پہ ڈرامے کرنے تھے کہ اللہ کی پناہ. بہرحال آگے چلیں. 170 پیج ہے کتاب کا. ویسے اصل نام جو ہے رسالے کا وہ ہے راز حقیقت. اچھا اس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے اسی طرح کہ شیعوں نے مجھے کتاب دکھلائی جس کا نام عین الحیات ہے, اس پہ تو ویڈیو بن گئی. اب مرزا قادیانی آگے لکھتا ہے کہ ابن بابویہ اور کتاب کمال الدین و تمام النعمت کے حوالے سے لکھا ہے, لیکن وہ تمام قصے بیہودہ اور لغو ہیں, صرف اس قدر اس کتاب میں سچ ہے. اب اس کتاب کے اندر سچ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جی میرے بھائی دیکھا آپ نے ان کا دھوکے باز شمس الدین صاحب کا طریقہ کار. یہ صرف پڑھ کے کہ صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے, آگے یہ بیان ہی نہیں کر رہے کہ کیا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو خط وہاں پہ شائع کیا ہے وہ کیا لکھا ہے وہاں پہ. یہ اتنا پڑھ کے کہ اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے, کہتے ہیں لو جی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سچ ہے, اور پھر وہی قصہ یوں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں کہ گویا اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سارا قصہ سچا ہے. یہ تو شمس الدین صاحب نے صریح جھوٹ بولا ہے عوام کو. اب میں عوام سے درخواست کرتا ہوں, ابھی تھوڑی سی ویڈیو رہ گئی ہے, شمس الدین صاحب کو پکڑیں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ نے 2 سال تک ہمیں الو بنایا, ہمارا وقت ضائع کیا, کس بات پر؟ جھوٹ بول کر.
बहरहाल सुने आगे, मैं दोबारा आपको सुना रहा हूँ। सिर्फ इस कदर इस किताब में सच है। अब इस किताब के अंदर सच क्या है वो हम देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। मिर्जा साहब ने सच लिखा है, ये देखा प्यारे भाई? अच्छा आगे यानी चलिए। हजरात, इस किताब का जिक्र मिर्जा साहब ने अपनी एक किताब में नहीं किया। मिर्जा साहब ने अपनी एक और किताब रूहानी खजान जिल्द नंबर 18 इसका ये है किताब, इसका नाम है अल हुदा। अच्छा जी, अब इससे अगला पेज भी देख लेते हैं। मिर्जा साहब क्या कहते हैं? मिर्जा साहब कहते हैं कि उनमें से एक किताब का नाम कमालुद्दीन है। ठीक है जी, वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, आगे कहते हैं मजीद बरा यूज़े आसफ ने अपनी किताब का नाम अंजील रखा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा प्यारे भाइयों, और ये सूरह जो आले अभी इमरान आयत नंबर ये प्यारे भाइयों सर, ये जो अभी हवाला था, ये हमने आपको इसकी तफसील बता दी है कि ये जो मसीह साहब ने लिखा था, बस जो सच जाहिर हो गया है उसे पकड़ ले और खुद साख्ता बातों को छोड़ दे। अगर तुझे तफसील चाहिए तो कमालुद्दीन नामी किताब पढ़। इस फिक्रे का ये मतलब है, जाहिर है कि जो ऊपर मैंने 3 बातें बयान की हैं, उन 3 बातों की अगर तुझे तफसील चाहिए तो कमालुद्दीन किताब पढ़। ये नहीं कि सारी किताब को मसीह सलाम कह रहे हैं कि वो ही किताब जिसके बारे में अपनी किताब में पहले जिक्र कर चुके थे कि बेहुदा और लगव किस्से हैं, उसके बारे में गोया यहाँ के कह रहे हो कि जी वो सारा किस्सा वो ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, बहरहाल ये आगे जो मैं ये वीडियो सुनाने लगा हूँ वो सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाना है कि ये दूसरों पर एतराज करने वाले लोग, इनको तो कुरान ही नहीं पढ़ना आता। और सूरह आले इमरान आयत नंबर 49, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिखा है वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमत वत तौरात वल अंजील। अंजील जी, ये इनको यही नहीं पता कि कुरान पाक ने यहाँ पे अलफ के नीचे जेर है जी, लेकिन ये अंजील पढ़े और बार बार पढ़े। अपनी वीडियो में 2-3 दफा उन्होंने पढ़ा है। आगे चलते हैं। अंजील अंजील यानी ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा हुए हैं। ये कादियानी जमात का भी अकीदा है। सुना प्यारे भाइयों, इन साहिब को खुद पता है, मैंने जो पहले भी बात की थी, कंफर्म है कि जमात अहमदिया मुसलमान का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा हुए हैं। लेकिन सस्ती शोहरत के लिए जब चैलेंज दिया तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा होगा है जी। एक ऐसी बात हमारी तरफ मंसूब कर दी जिसके बारे में ये साहब खुद अपनी वीडियो में मान रहे हैं कि वो बात जमात अहमदिया का अकीदा उस तरह से नहीं है जो इनके चैलेंज में लिखा हुआ है। बहरहाल आगे चलें। तमाम मुसलमानों का भी यही अकीदा है। और यूज़े आसफ जो है ये बिन बाप पैदा नहीं हुआ, इसका बाप बादशाह था। 2 किताबों का मिर्जा कादियानी ने जिक्र किया, हमने दोनों पढ़ी तो दोनों के अंदर ये किस्सा मौजूद है कि वो बादशाह का बेटा था, उसका बाप बादशाह था, इसीलिए तो वो शहजादा कहलाता है। देखा प्यारे भाइयों, फिर वही गलत बयानी की है जी। बहरहाल आगे चले, हमने ये पूरी बात पहले बयान कर दी हुई है। अच्छा जी, ये है आयत नंबर, सूरह माइदा है, इसकी आयत नंबर है 111। ये दोबारा सुन ले जी मुहक्किक साहब का कुरान पाक। इसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अलमतुकल किताब वल हिकमत। ये दोबारा सुने जरा है जी, ये देखें इनको कुरान मजीद इनका वो बार बार सुना रहे हैं। ये ना इनको पढ़ना आता है, ना पायस पीर साहबा को नाजरा कुरान पढ़ना आता है, ना समर रिजवी साहब को आता है। ये तीनों ही गलत पढ़ते हैं। मैंने इनको मशवरा भी दिया था कि सादा तर्जमा पढ़ा करें, अरबी ना पढ़ा करें। क्यों गलत कुरान पढ़ के तो गुनाह करते हैं, हालांकि आपको तवज्जो दिलाई भी गई है। जी जी सुने जरा दोस्तों। लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अलमतुकल किताब। ये देखें, ये इनको, इस बंदे को ये नहीं पता कि शद को कैसे पढ़ना होता है। आगे सुने। वल हिकमत व तौरात वल अंजील, फिर वल इंजील। ठीक है, फिर कादियानी यही है क्या कहता है? मिर्जा साहब ने किसी भी कुरानी नबी की तौहीन नहीं की। यही है साहब, बताइए क्या कहते हैं? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? ईसा इब्ने मरियम, मिर्जा साहब कहते हैं यूज़े आसफ जो बादशाह का बेटा है वो ही ईसा इब्ने मरियम है। ना कुरान में यूज़े आसफ का जिक्र, ना हदीस में यूज़े आसफ का जिक्र। जी मेरे भाई, क्योंकि मैंने ये आपको सुनवाना था, ना कुरान में यूज़े आसफ का जिक्र, ना हदीस में यूज़े आसफ का जिक्र। तो फिर शमसुद्दीन साहब ये जो आपने बना दिया था चैलेंज है जी, और इसमें लिख दी थी ऊपर कुरान और हदीस, तो ये आपने क्या ड्रामा किया था लोगों के साथ? जब आपको भी पता है कुरान और हदीस में नहीं है, यानी वो अल्फाज मुअय्यन तौर पर मौजूद नहीं है,
तो फिर आपने ये लोगों के साथ ड्रामा क्यों किया? बहरहाल ये इन लोगों को पता होने के बावजूद, जो मैं आपका दिखला रहा हूँ प्यारे भाइयों, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब आपको भी पता है कि क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं। आगे चले हैं। चले बरला आगे देखते हैं। तो कादियानी हजरात जरूर गौर कीजिए, ये दो किताबें मिर्जा साहब ने हमें अपनी किताब में कहा कि इसकी यूज़ आसत की तफसील पढ़ो, हमने पढ़ ली। ये देखा प्यारे भाइयों, फिर झूठ बोल रहे हैं कि गोया मिर्जा साहब ने कहा कि इसके अंदर से तफसील पढ़ो से मुराद ये है कि वो बिल्कुल सच्ची बातें हैं। किस कदर ये गलत बयानी कर रहे हैं साहब। लेकिन वो तमाम किस्से बेहुदा और लग़व हैं, लेकिन वो तमाम किस्से बेहुदा और लग़व हैं, लेकिन वो तमाम किस्से बेहुदा और लग़व हैं। ये देखिए, ये रूहानी ग़ज़ात जिल्द नंबर 17 है। इसके अंदर मिर्जा, ये जो मिर्जा कादियानी ने उसके बाप का जिक्र नहीं किया। इस बात से हमें पता चल गया कि मिर्जा कादियानी को ये सारा किस्सा मालूम था, मगर मिर्जा कादियानी ने अपनी उम्मत के साथ धोखाधड़ी की है। ये किताब का पेज है 100 और 101। ये 100 नंबर पेज पे मिर्जा कादियानी लिखता है कि एक नबी यूज़ आसफ के नाम से मशहूर। ये देखें मेरे भाइयों, ये इसलिए मैंने लिया है। अब थोड़ा सा बड़ा इन्होंने जब लगाया है यहाँ पे अपनी चिट, तो वो जो पहले बात कर रहे थे ऐनुल हयात के या दूसरी किताब के हवाले से, तो ये देखें शमसुद्दीन साहब उसी अपनी वीडियो के अगले हिस्से में अपने आप को झूठा साबित करवा गए। ये इसी हवाले के बारे में पहले ये कुरान एक हाथ में लेके कह रहे थे कि ये ऐनुल हयात किताब के बारे में गोया मसीह इस्लाम ने ये बात लिखी है। आगे चलें। तो उसकी किताब का नाम अंजील था। वो मैंने पहले जिक्र कर दिया कि अंजील किसकी किताब है। तो नाज़रीन सामीन किराम, मिर्जा कादियानी ने जिस अपनी किताब में ये बात लिखी कि इन दो किताबों को पढ़ने से पता चल जाएगा कि यूज़ आसफ कौन है। ये देखें मेरे भाइयों, फिर वही झूठ बोल रहे हैं जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। मसीह इस्लाम ने मुअय्यन वहाँ पे बातें ली हैं उन दोनों किताबों से। तो जब हमने वो किताबें पढ़ी तो हमें पता चल गया, लेकिन वो तमाम किस्से बेहुदा और लग़व हैं, लेकिन वो तमाम किस्से बेहुदा और लग़व हैं, लेकिन वो तमाम किस्से बेहुदा और लग़व हैं। यहाँ एक ये भी बात मुमकिन है कि कादियानी हजरात अक्सर क्या करते हैं कि इस तरह की किताबें खुद छाप के रख लेते हैं उनमें ये देखें प्यारे भाइयों, चूंकि ये खुद झूठे लोग हैं और ये देखें किस तरह का शोशा छोड़ रहे हैं जी। जमात अहमदिया वाले गोया खुद ही किताबें जो हैं वो छाप के रख लेते हैं। उनके पास सबूत होगा ना, वो सबूत पेश कर देंगे। आप उनसे सबूत मांगे तो वो भी पेश कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सुना के फिर पूछता हूँ जनाब। इस तरह की किताबें खुद छाप के रख लेते हैं, उनमें से वो तहरीरात निकाल देते हैं और बाद में जब ऐसा मामलों की पेश आता है तो तहरीर पेश कर देते कि ये देखे जी, ये तो इसमें ये ऐसा था। तो बहरहाल इंशाल्लाह उसका हल भी रज़ाई भतीजे के पास मौजूद है। और आगे से इस किताब के एंड पे सफ़ा नंबर 203 पर लिखा है। ये जरा प्यारे भाइयों जरा सुनिएगा, इन लोगों के वो कहते हैं ना कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने मुनकरीन के बारे में लिखा हुआ है, किस तरह की वो इस्तेहज़ा और करते हैं। सुने जरा। अब मिर्जा कादियानी का नाम सुन लीजिए। लिखा है इमाम मुंतज़िर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, हिंदी व पंजाबी। क्या लिखा है? कैसा बुरा ना मनाइएगा अगर हम मिर्जा साहब को इमाम हिंदी या पंजाबी कहें तो आपने बुरा नहीं मनाना, मरबियान बुरा ना मनाइएगा। ये देखें प्यारे भाइयों, ये इनको बस यही इनको इस तरह की बातों पर बड़ी इनको हंसी आती है। अब ये देखें जो असल जो तहरीर है जो मेरा ख्याल मैंने यहाँ पे खोली थी, ये है जी सफ़ा 203। अब जब मसीह इस्लाम ने ये ख़त्म कर दिया रिसाला, तो ये उसके ज़ाहिर है वो जब तमहीद लिखनी होती है, आखिर लिखना होता है, ये जिसने भी ये लिखा है। अब पूरी इबारत क्या है? ये रिसाला इत्माम हुज्जत नीज़ इज़्ज़त माब हज़रत मसीह माऊद महदी माहूद और समद खुदा से तायद याफ्ता इमाम मुंतज़िर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, हिंदी पंजाबी, अल्लाह उनकी नुसरत व तायद फरमाए, ने मिशन की इशाअत की गर्ज से तालीफ फरमाया। अब पता नहीं शमसुद्दीन साहब को अपनी पंजाबी होने पे इनको कोई होगा कॉम्प्लेक्स होगा या इनको पाकिस्तानी होने पे कॉम्प्लेक्स होगा, है जी। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि मुल्क हिंद से और आदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी है इमाम महदी से मुतल्लक़ के वो जो झंडे हैं वो हिंद की तरफ से आएंगे। तो अगर लिख दिया हिंदी वहाँ पे और पंजाबी, यानी ये मतलब है कि ये
अरबी नहीं है, अजमी कौम, ठीक है जी। तो इसमें ये देख लें लोगों को, इनके जो मेयार हैं वो हमने आपको दिखाने थे कि कैसी कैसी बातों को ये लोग ये समझते हैं कि बड़ी जनाब हो, इस पे हंस लो। बहरहाल आगे चले। मेरे पास किताबें है ना, ये खाली वैसे सजी या पड़ी नहीं है मेरे सामने, ये मैंने पढ़ी भी नहीं है। तो ये मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब जिल्द नंबर 21। ये मेरे भाइयों, ये हमने आखिर पे आपको इसलिए दिखाया है कि ये साहिब जो दावा ये करते हैं कि ये सारी किताबें इन्होंने पढ़ी हुई हैं, हाँ जी, सारी किताबें इन्होंने पढ़ी हुई हैं, और जो जो ये किताबों के साथ इन्होंने हशर किया, जो जो इन्होंने इस तहकीक के साथ हशर किया, वो हमने आपको दिखा दिया। इन्होंने सरी गलत बयानियाँ की, इन्होंने सरी झूठ बोले, हज़रत सलाम के जो किताबें हैं उनसे मुतल्लिक सरी झूठ बोले, और